Good morning, children. Today I am starting with chapter 2 of your supplementary book. The name of the chapter is Children at Work. So, this story is a part of the full novel From Trash. It's on the rag picker children and recycling. Rag picker children are the children those who used to pick up the rags, the कचरा हम जो ये बोलते हैं, जो कचरा बीनने वाले बच्चे होते हैं, तो ये उनके ऊपर स्टोरी बनाई हुई है. एंड द नेम ऑफ द 3 राइटर्स आर हेयर: गीता वुल्फ, अनुष्का रविशंकर एंड अरिजीत सेन. So before starting with the explanation of the chapter, let's read about what's given in before we read. So there are many reasons why children have to work. बहुत सारे reasons होते हैं. हम ये कह देते हैं कि भाई बच्चे, छोटे छोटे बच्चों से काम कराया जाता है या छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं, but there are so many reasons behind them. Some help their families make a livelihood. कुछ बच्चे इसलिए वर्क करते हैं क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली को हेल्प करना पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स इतने स्किलफुल कह सकते हैं, या फिर मे बी सम अदर कंडीशन, बिकॉज ऑफ द सम अदर रीज़न दे हैव टू गो आउट टू वर्क. एंड अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी फैमिलीज़. और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चे अपने घर छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि वो अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं. So there, because they need to support themselves, they had to work. Children who had to work can't go to school and play like other children of their age. ना तो वो खेल सकते हैं, ना वो स्कूल जा सकते हैं जैसे उनकी एज के दूसरे बच्चे करते हैं. So here, as we can see in the picture, this is the story about 2 little children. So these are the children, these are the heroes of the story. So the name of the boy is Velu and he is an 11-year-old boy. और ये बच्चा अपने घर से भाग कर आया है. Why he ran away from his home? Because of his father. उसके फादर जो थे वो उसको और उसकी सिस्टर को कहते थे कि पैसा लेकर आओ, बहुत मारते थे, और जिससे कि वो हार्ड ड्रिंक पी सके. वो मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे और जिसकी वजह से वेलू को अपना घर छोड़ना पड़ा. वेलू अपना घर छोड़कर वहाँ से भागकर आ गया. तो लेट्स स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन चिल्ड्रन. As I said, this is a story about 2 little children. The name of the boy is Velu and he is an 11-year-old boy. He had run away from home, as I told you. Why? Because of his father. तो अब वो भाग गया है और उसको ट्रेन में भी बैठना है, but he don't have money to buy the ticket. He got into the railway train without a ticket. So he had to do so because he had no money. He escaped the ticket caller's notice because he did not come to that unreserved. Means unreserved डिपार्टमेंट में जो टिकट कलेक्टर होते हैं वो ज़्यादातर आते नहीं हैं, इसलिए वो अनरिजर्व डिपार्टमेंट में जाकर छुप गया, वहाँ पर जाकर बैठ गया. लेकिन अब उसे उतरना भी था. He got off the train at Chennai Central. His legs were unsteady as if he was still standing in a moving train. It was because of the tiredness, weakness and fear. बहुत थका हुआ था, वीक भी फील कर रहा था और डर भी रहा था, तो वो शेक कर रहे थे उसके लेग. और जैसे लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उसके बारे में बातें कर रहे थे तो वो भी बड़ा उसको परेशान कर रहा था. The crowd and the way the people looked upon him made him miserable. He sat on the bench on the platform with a small bundle beside him. He was very hungry. 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. Just only some peanuts and a piece of jaggery. Jaggery means गुड़. एक छोटा सा गुड़ का पीस खाया था और कुछ नहीं. तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी. Suddenly he heard a rough voice calling him. बिल्कुल अजीब सी आवाज़ थी. He saw a girl around his age. उसी की एज की लगभग एक गर्ल थी. She was wearing a very long बनियान. एक लंबा सा बनियान उसने पहना हुआ था. Velu stared at her vacancy. समझ ही नहीं आ रहा था कौन थी वो लड़की. Then she asked his name. She guessed rightly that Velu had run away from home. वो तुरंत समझ गई कि ये जो है भाई साहब भाग कर आए घर से. Then she told him that he won't get food sitting there. The girl was a rag picker. She picked her sack and moved away. उसने कहा यहाँ बैठे रहोगे, खाना वाना कुछ नहीं मिलेगा. तुरंत उसने अपना बोरा उठाया और वहाँ से चल दी.
अब वेलू ने सोचा कि ये क्या है, ये तो जा रही है, तो शी वॉज द ओनली होप फॉर हिम, तो ही डिसाइडेड टू फॉलो हर. वेलू कॉट अप विद द गर्ल. द टू केम ऑन द रोड. अब वो सड़क पर आ गए. वेलू हैड नेवर बीन on these kind of roads. The girl helped him to cross the road and they walked along the side of the road. वो रोड की साइड में चलते रहे. There were huge signboards above them. The writing was all in English. Velu understood nothing. अब इंग्लिश में लिखा हुआ था साइन बोर्ड्स पर. वेलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो this shows that he did not know English. They walked for a long time. बहुत लंबे समय तक वो चलते रहे. The girl pointed out to one of the building with a wall around it. Velu read the Tamil sign on it. It was Central Jail. अब ये वेलू ने पढ़ लिया क्योंकि ये सब कुछ तमिल में लिखा हुआ था. तो लड़की हंसने लगी. She told him to be careful if he wanted not to be inside that jail. उसने कहा अगर अंदर नहीं जाना है तो थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा ही पड़ेगा. वेलू said that he hadn't done anything wrong. उसने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों जाऊँगा. The girl said that it didn't matter. The important thing was that he shouldn't be caught. कि तुम्हें पकड़ना नहीं है. After an hour walk they stopped in front of a big building. एक बड़ी सी बिल्डिंग आई और 1 घंटा चलने के बाद वो उस बिल्डिंग के सामने जाके खड़े हो गए. द साइन ऑन द बिल्डिंग रीड श्री राजेश्वरी प्रसन्ना कल्याणा मंडपम. अब ये वेलू ने पढ़ लिया. क्यों पढ़ लिया? बिकॉज दैट वॉज ऑल्सो रिटन इन तमिल लाइक द साइन बोर्ड ऑन द सेंट्रल जेल. तो इससे पता चलता है कि वेलू नोज टू रीड तमिल बट नॉट इंग्लिश. वेलू लुक्ड एट द ह्यूज हॉल एंड द क्राउड ऑफ द पीपल इनसाइड. लोगों को देखा. उसने कहा अरे क्या अब हम अंदर जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, अब हम अंदर जाके खाना खाएंगे. ही आस्क्ड द गर्ल इफ दे वर गोइंग टू ईट देयर. द गर्ल रिडिक्यूल्ड हिम. उसने कहा अच्छा दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, तुम अंदर जाओगे, अपने कपड़े देखे हैं. देन शी लेड हर टू द गार्बेज बिन बिहाइंड द हॉल. जो हॉल के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था गार्बेज बिन, वहाँ पर उसको लेकर गई. द गर्ल पिक अप द क्रश्ड बनाना एंड ऑफर्ड इट टू वेलू. द गर्ल said that she ate only untouched food. Oh, eat! Velu was shocked and asked if they were going to eat the leftover. क्या हम बचा कुचा खाना खाएंगे? तो उसने कहा ऐसे नहीं है, जो untouched होता है मैं सिर्फ वही खाती हूँ. She threw him a vada. Velu looked at it with distaste. उसको बहुत बुरा लग रहा था. However, he was too hungry to refuse any food, so he ate the banana as well as the vada. वड़ा भी खा लिया, बनाना भी खा लिया. अब दोनों चीज़ वो खा चुका था. गर्ल को कुछ नहीं मिला अपने लिए, तो बड़ी मुश्किल से she could find only one more banana which she ate herself. उसको एक और बनाना मिला जो उसने खुद के लिए खा लिया. This girl's name was Jaya. So the name of the girl was Jaya. She picked up a couple of bottles from the heap. She said she had to do her work. Seeing her going, Velu panicked. वेलू को बड़ा अजीब लगने लगा. उसने कहा अरे ये क्या हो रहा है, और ये तो जा रही है मुझे छोड़कर. तो अब खाना तो खिला दिया है. तो गर्ल सेड कि अब तुम्हारा पेट भर चुका है, अब मेरा काम भी पूरा हो गया है, अब मुझे जाने दो. तो वेलू डिसाइडेड टू फॉलो हर ओनली. तो व्हाट दे डिड, they walked on for half an hour again. आधा घंटा वो फिर चले. They came to a bridge across a dirty trickle of water. एक गंदा नाला था, उसके ऊपर एक ब्रिज थी, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था. तो वो उस ब्रिज पर पहुंच गए. तो जया कॉल्ड इट बैकिंगम कैनाल. बैकिंगम कैनाल उसको बोलती है जया. एंड शी सेड नियर सम puddles ऑफ वाटर. थोड़ा सा कहीं कहीं पानी जो इकट्ठा हो जाता है वहाँ पर वो देयर वॉज अ रो ऑफ हट. एक बहुत लंबी सी एक रो बनी हुई थी हट्स की, और वो उस हट्स की तरफ वो बढ़े. दीज वर द स्ट्रेंजेस्ट हट्स वेलू हैड एवर सीन. उसने कभी इस तरह की कभी हट देखी ही नहीं थी. तो वेलू बड़ा अजीब सा उसको फीलिंग आ रही थी, ये किस तरह की हट है. बिकॉज जो हट उसने देखी थी वो तो बिल्कुल अलग थी, जो उसके गांव में होती थी. वो अपने गांव से ही तो आया था, शहर में पहली बार आया था. अब उसने इस तरह की हट कभी भी अपनी लाइफ में पहले नहीं देखी, और वो उनको देखकर बड़ा हैरान हो रहा था क्योंकि they were made up of all sort of things, metal, sheets, tires, bricks, wood and plastic. सब कचरे से मिक्स करके वो बनी हुई थी हट.
They stood crookedly and looked as if. To Velu, these huts looked strange because in his village the houses were made of mud and palm leaves. palm leaves से बनी होती थी और mud से बनी होती थी. ये बिल्कुल अलग थी. Jaya dumped her sack outside the hut. जया ने अपना जो सैक था उसको हट के बाहर फेंका. Then she picked up an empty one. फिर उस जो भरा हुआ सैक था उसको तो उसने अंदर फेंका और एक खाली उसने अपने हट में से निकाला. शी गेव वेलू अ पेयर ऑफ ओल्ड शूज़ विदाउट लेसेस. जो पुराने जूते थे उसके पास, क्योंकि वेलू के पास इस समय कुछ भी नहीं था तो वो नंगे पैर चल रहा था, तो उसने एक ओल्ड पेयर ऑफ शूज़ भी वेलू को दिया पहनने के लिए. विदाउट एनी लेसेस. शी हैंडेड हिम अ सैक एंड स्टिक ऑल्सो. अब उसने उसको सैक भी दिया और एक स्टिक भी दे दिया. उसने कहा कि ये सैक लो जैसे मेरे पास है और एक स्टिक भी लो क्योंकि इसकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी. वाई? तो वो अगेन वेलू वॉज कन्फ्यूज. देन जया एक्सप्लेन दैट शी वॉज अ रैक पिकर. मैं एक कचरा बीनने वाली लड़की हूँ. दिस वॉज द ओनली वर्क शी कुड गिव टू वेलू इफ़ ही वॉन्टेड एनी. उसने कहा इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती. चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक, ग्लास एक्सेट्रा. Then they sell to Jaggu of Jam Bazaar. Jaggu sells them to a factory. तो वो छोटे छोटे बच्चे जग्गू के पास और जग्गू किसके पास? फैक्ट्री में ले जाते थे. He hadn't come to Chennai to dig through the garbage. अब उसने कहा कि मैं चेन्नई इसलिए आया हूँ कि मैं गार्बेज में से सामान उठाऊँगा और फिर वो किसी को जाकर देकर आऊँगा. ये सब क्या है? मतलब उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था. और ये जग्गू कौन है और ये काम करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ चेन्नई. However, he felt he must do it until he finds a better job. तो उसने सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, ये मैं तब तक करता रहता हूँ जब तक कि मुझे कोई बेटर जॉब नहीं मिलता. सो ही फॉलोड हर विद अ साइन. तो उसने कहा अरे अब एक साइन मतलब कि चलो अब तो करना ही पड़ेगा. जब तक कुछ अच्छा नहीं हो जाता तब तक मुझे ये काम करना ही पड़ेगा. So I hope children you must have understood this story, and this is a very interesting story about two little children, how they survived and how brave the little girl is, और उसने किस तरह से वेलू की भी हेल्प की. So children, please read the chapter thoroughly again so that you may understand it clearly and properly. And if you find any kind of problem in any part of this chapter, you can text me, or you can send me a message through the comment box here in this video. Thank you. Have a nice day.